All right. So first we'll define temperature, and then we'll see in which scales what are their SI unit and what are the other units, है ना. तो टेम्परेचर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कूलनेस, है ना, कितना हॉट या कूल है. एंड टेम्परेचर यहाँ पे देखो, जस्ट लेट मी एक्सपेंड इट. एंड इट्स SI यूनिट इज Kelvin. Sorry, एक minute. Just let me explain it. So temperature is the degree of hotness or coldness, and there is lower limit of the temperature, which is 0 Kelvin. Kelvin is the SI unit. Kelvin is the SI unit, but no upper limit. Okay. Lower limit to have 0 Kelvin, but upper limit is not there. You can go to the any temperature, and average temperature of universe is 2 Kelvin only. यूनिवर्स का अगर हम टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, इट इज 2 केल्विन, क्वाइट ए लो टेम्परेचर. वी आर लकी, our planet is near to sun, so here temperature is much more than the 2 Kelvin, therefore we can survive. Therefore there is a life on the earth. Are you getting? यूनिवर्स का टेम्परेचर 2 Kelvin है, which is very very low temperature. ठीक है. and on earth it is much more. Therefore life is possible on the earth. Therefore we are discussing all these about the temperature. Okay, so temperature is the degree of hotness or coldness of the object, and we see upper limit तो नहीं है इसकी, lower limit is 0 Kelvin, and it is measured in Kelvin. SI unit is Kelvin. यहाँ पे लिखो, its SI unit is Kelvin. Okay. What are the other units? It can also be measured in degree Celsius or centigrade scale और फ़ारेनहाइट स्केल, है ना. कभी कभी डिग्री सेल्सियस में हमें टेम्परेचर दिया होगा, कभी डिग्री एफ में दिया होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है. तो देयर आर 3 मेन टेम्परेचर स्केल्स. मेन टेम्परेचर स्केल्स 3 कौन कौन से? एक तो SI यूनिट है. फर्स्ट वन इज द Kelvin or absolute scale, we call it. First one is the Kelvin or absolute scale. Second one we'll discuss degree Celsius, and third one is this. Other may be there, but we are going to discuss these 3 only. We are going to come across only these 3. Kelvin scale में देखो क्या होता है. Can you see this diagram of our textbook? Just थोड़ा सा बड़ा करते हैं उसको. देखो इसमें टेम्परेचर स्केल्स के लिए there will be one ice point जहाँ पर water will freeze. So ice point will be in Kelvin scale. Ice point will be 273.15 Kelvin, and steam point or boiling point will be at 373.15. और उनका जो बीच का गैप है, that is divided into 100 divisions. ठीक है. Temperature is measured in Kelvin. SI unit is Kelvin. Kelvin स्केल को हम डिफाइन कर रहे हैं कि इसका जो आइस पॉइंट है, freezing point will be at 273.15 Kelvin. At this temperature water will freeze at 1 atmosphere. आ रहा समझ में आपको? एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर हमें बताना है, ये स्टीम पॉइंट बताना है, वाटर कितने पे बॉयल होती है, 373.15 केल्विन पे वाटर विल बॉयल.
इट इज नॉट 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 373 है, 100 नहीं है, गेटिंग? और बीच का जो गैप है इट इज डिवाइडेड इनटू 100 डिविजन्स। केल्विन स्केल अगर आप देखेंगे तो आपको ये these things will be visible। अगर आपका टेम्परेचर, अच्छा इसे मेजर किससे करते हैं? हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर? बोलिए, टेम्परेचर को मेजर किससे करेंगे? थर्मामीटर से। थर्मामीटर या थर्मामीटर जो है अपने कोर्स में नहीं है, पर थोड़ा सा बता देता हूँ थर्मामीटर के बारे में। जैसे थर्मामीटर में जैसे ये आपका, ये आपने देखा होगा द द ग्लास ट्यूब वाला जो थर्मामीटर है घर में जो यूज करते हैं हम लोग, इसके अंदर क्या रहता है? मर्क्यूरी रहता है ना? जब मर्क्यूरी है, जब हम इसको हॉट सोर्स के कांटेक्ट में लाएंगे तो एक्सपेंशन होता है, इट विल राइज। बॉडी, अपने बॉडी का टेम्परेचर भी है ना, इट इज मोर देन द जनरली आउटसाइड टेम्परेचर, तो इट विल राइज। यहाँ पर देखो, इट विल राइज, एक्सपेंशन होगा। और यहाँ पे रीडिंग्स ऐसे लिखी होंगी कुछ, यू कैन मेजर इट, हाउ मच इज द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट। तो इसमें क्या होता है, दैट थर्मल, दैट एक्सपेंशन क्वालिटी ऑफ मर्क्यूरी इज यूज्ड, है ना? There may be some other thermometer where the pressure may be used to measure the temperature. There may be some other thermometers where the thermal thermal expansion of the other material will be used. There may be some resistance change also may be used. Different thermometers may be there. One of the property they will use. ये कौन सी property use करते हैं? Expansion की, एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी, मर्करी के एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी यूज करके टेम्परेचर बताते हैं। तो थर्मामीटर्स आर देयर टू मेजर द temperatures, but temperatures can be measured. Yeah. Sir, can you scroll up? I need the notes from starting. स्टार्टिंग में तो मैंने टेम्परेचर का इंट्रोडक्शन दिया है ना। Okay, sir. I have that. हाँ, आफ्टर दैट टेम्परेचर इज मेजर्ड इन द थ्री स्केल्स। वो मैं बता रहा था, ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बताया जो कि इट इज नॉट देयर इन आवर बुक, है ना? जैसे ये मैंने आपको एक जस्ट थर्मामीटर का दिखाया, दिस वन, ये हम डे टू डे लाइफ में अपने घर में भी यूज करते हैं। देयर इज अदर थर्मामीटर आल्सो, चेंज इन टेम्परेचर कॉजेज द प्रेशर ऑफ गैस टू चेंज, है ना? इस टाइप का भी ये टेम्परेचर के कांटेक्ट में ले आएंगे, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा तो उसका that it may indicate pressure, increase of pressure may be related to change of temperature. So there are various physical quantities can be used to indicate the temperature. यहाँ पे expansion quantity, यहाँ पे pressure quantity use करते हैं change of temperature के लिए। तो temperature thermometers are not in our course, but temperature scales, various temperature scales are there in our course. You may have to convert from one to other numericals में। तो फर्स्ट वन इज द केल्विन। केल्विन स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट और आइस पॉइंट इज एट 273 एंड बॉइलिंग पॉइंट और स्टीम पॉइंट इज एट 373.15 भी है, और बीच का जो गैप है इट इज डिवाइडेड इनटू 100 डिविजन्स, मतलब वन डिवीजन विल रीड 1 केल्विन, देयरफॉर वन डिवीजन विल बी इक्वल टू 1 केल्विन, है ना? क्योंकि 100 डिवीजन है, यहाँ से 100 का डिफरेंस है, देखो 100 डिवीजन है, इट मींस वन डिवीजन इज गोइंग टू इंडिकेट 1 केल्विन, ठीक है? तो दैट इज एब्सोल्यूट स्केल और केल्विन स्केल, इट इज एसआई स्केल, है ना, एसआई यूनिट। देयर कैन बी अदर यूनिट्स आल्सो, है ना? इट कैन बी इंडिकेटेड इन डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस इज नॉट द एसआई यूनिट, इट इज सीजीएस यूनिट इन फैक्ट, है ना? इट्स डिग्री सेल्सियस सीजीएस यूनिट है, बट वी जनरली डोंट राइट दैट, बट यू शुड नो इट इज सीजीएस यूनिट। इसमें आइस पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। जनरली वी आर डीलिंग विद दिस, बट दिस इज नॉट द एसआई यूनिट, यू नो, केल्विन इज द एसआई यूनिट, ठीक है? तो इसमें आइस पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस। स्टीम पॉइंट इज एट 100, है ना? यहाँ पे देखो आइस पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस दिखा है, स्टीम पॉइंट इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। बीच का जो गैप है that is again divided into 100 divisions, 100 divisions है, it means one division will be equal to 1 degree Celsius। इसमें देखो डिग्री लिखते हैं,
Kelvin में degree is not written. You don't have to write degree. That is what is the convention. Conventionally, Kelvin में हम लोग degree नहीं लिखते. Celsius में, which is also centigrade. नाम है साइंटिस्ट के नेम है. Kelvin also, Celsius also, centigrade भी उसको बोलते हैं. तो this is the second scale, second unit of your temperature measurement, which is CGS unit. है ना? CGS unit याद है आपको? CGS unit. ठीक. All right. Third one जो है, it is Fahrenheit scale, degree F, है ना? Denoted by degree F. इसमें ice point जो है, it is at 32. It is not 0, 32 degree Fahrenheit is the freezing point or ice point, and boiling point or steam point is at 212 degree Fahrenheit. Number of divisions, बीच का जो गैप है यहाँ पर देखो, ये जो गैप होगा, it is 180 divisions. इसमें 100 divisions, इसमें 100 divisions. इसका मतलब 180 divisions तो छोटे होंगे, इसके divisions will be smaller, है ना? Same gap is divided into 180 divisions. इसके divisions will be छोटा, मतलब smaller than other divisions. इसका एक division, one division will read 1 degree Fahrenheit, but it will be total 180 divisions will be there. The same range is divided in more number of divisions. है ना? So now you may be thinking, if temperature is given in degree Celsius or Fahrenheit scale, how to convert into Kelvin? ऐसा यूनिट में तो Kelvin में पुट करना है, ये तो चलेगा नहीं है, ना तो ये चलेगा ना ये चलेगा, है ना? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको Kelvin में, when you solve the numerical, है ना? Otherwise no problem, but solving the numerical should be done in Kelvin. ठीक है? क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया क्या किया हम लोगों ने? टेम्परेचर को डिफाइन किया, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, क्या ना? कितना ऑब्जेक्ट, मोर टेम्परेचर मींस you will feel it hot, less temperature means object will be felt cold, है ना? इसको मेजरमेंट किस में करते हैं? केल्विन में भी मेजर इट, और डिग्री सेल्सियस में भी मेजर इट, एंड फारेनहाइट स्केल आल्सो, दे आर कॉल्ड वेरियस टेम्परेचर स्केल्स. क्लियर यहाँ तक? बोलिए, आर यू देयर? Yes, so clear. Okay. Yes, so clear. So now how to change from one to other? Suppose आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, या डिग्री फारेनहाइट में दिया है, केल्विन में कन्वर्ट करना है. तो हाउ टू कन्वर्ट? तो देयर इज वन रिलेशन, लेट्स सी व्हाट इज दैट रिलेशन. देखिए, ये रिलेशन होता है, जनरल रिलेशन टू कनेक्ट एनी टेम्परेचर स्केल विद द अदर वन. तो ये फार्मूला होता है, देखो, x माइनस आइस पॉइंट डिवाइड बाय स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? मतलब ये फार्मूला है, इससे हम x की जगह इफ वी राइट डिग्री सेल्सियस और केल्विन और फारेनहाइट स्केल और एनी अदर स्केल, एनी न्यू टेम्परेचर स्केल कैन आल्सो बी यूज्ड. तो यहाँ पर ये तो मैंने ऐसे लिखा, नाउ इन इफ वी राइट इन प्लेस ऑफ x वी राइट c, सेल्सियस स्केल और सेंटीग्रेड स्केल. तो उसमें आइस पॉइंट कितना होगा? 0. स्टीम पॉइंट कितना होगा? 100 माइनस 0. आइस पॉइंट इज 0, तो नीचे 100 रहेगा. नाउ इफ वी राइट f फारेनहाइट स्केल, x की जगह इफ वी राइट f, तो उसमें आइस पॉइंट कितना है? 32. ऊपर अभी हमने डिस्कस किया. कैन यू सी दिस? इट इज स्टिल विजिबल. 32 आइस पॉइंट, नीचे क्या आएगा? स्टीम पॉइंट 212. कैन यू सी हियर? एंड आइस पॉइंट इज 32 देयर. एंड केल्विन स्केल में आइस पॉइंट इज 273, स्टीम पॉइंट इज 373 माइनस आइस पॉइंट विच इज 273. तो ये अपना रिलेशन बन गया तीनों में. जैसे जनरल फार्मूला, उससे हमने तीनों को रिलेट कर लिया. एंड दिस रिलेशन इज आल्सो वैलिड फॉर एनी न्यू टेम्परेचर स्केल
और इवन फॉल्टी थर्मामीटर में फॉल्ट आ गया, उसका आइस पॉइंट चेंज हो गया, सपोज इट इज डिग्री सेल्सियस स्केल, उसका आइस पॉइंट 10 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, है ना, और नीचे भी 10 आ जाएगा, लाइक दिस। अगर फॉल्टी थर्मामीटर है, बट यू नो दैट at what temperature, at what new temperature it is indicating the ice point, तो फॉल्टी थर्मामीटर के लिए यहाँ पर ये यूज कर लेंगे इसको हम, यहाँ पर आइस पॉइंट जो फॉल्टी थर्मामीटर का है लिख देंगे, यहाँ पर स्टीम पॉइंट जो है वो लिख देंगे, ठीक है। और अगर न्यू थर्मामीटर है कोई, उसका आइस पॉइंट दिया होगा और उसका स्टीम पॉइंट दिया होगा यहाँ पे लिख के, और हम उसको अगर हमें सेल्सियस स्केल में सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है कर लेंगे, एंड केल्विन में कन्वर्ट करना है उसके साथ इक्वेट कर देंगे, अगर फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है इसके साथ इक्वेट कर देंगे। तो फॉर न्यू एंड फॉल्टी थर्मामीटर this point will be related to any one of them, equated to any one of them, and we can solve the problems, particularly those who are going for competitive examination, उनका कभी कभी फॉल्टी थर्मामीटर या न्यू थर्मामीटर उसका दिया होगा आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, ठीक है। तो we'll solve 2-3 numericals, you will have the confidence, तो नोट कर लीजिए Okay. इसको। Sir, can you please Yeah. go a bit slow? Your voice is cracking. ओके ओके, तो यहाँ तक क्लियर है? अप टू हियर इट इज ओके। Yes, sir. sir. Okay, after that we have written general formula. Now what can we do? अभी इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमें इन दोनों में कन्वर्जन फ्रॉम वन टू अदर वी कैन कन्वर्ट, इनको इक्वेट कर सकते हैं, तो रिलेशन बिटवीन सी एंड एफ मिल जाएगा। कैन यू सी हियर? ओके, यहाँ पे यू कैन सी, इफ यू वांट टू डिस्कस रिलेशन बिटवीन सी एंड एफ, तो व्हाट वी डू, इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो ऊपर तो ये 0 था, तो ये आ गया, और यहाँ पर 212 माइनस 32, तो ये 180 बच जाएगा यहाँ पे। इट विल बी, इफ यू डू द माइनस इट विल बी 180, जो डिविजन थे ना, नंबर ऑफ डिविजन, दैट विल बी कमिंग हियर। और इसको सिंप्लीफाई कर लो, इट इज 0 कैंसिल हो गया और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लिया तो ये आ गया रिलेशन, गॉट इट। तो सी एंड एफ, सपोज हमें सेंटीग्रेड में कोई टेम्परेचर दिया है, एफ में निकालना है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर एफ में दिया है तो सेंटीग्रेड में निकाल सकते हैं। तो डू यू नो व्हाट इज अवर बॉडी टेम्परेचर एट नॉर्मल कंडीशंस? 97 degrees Celsius. 97 degrees No. Celsius. No, it is not the degree Celsius. Degree Celsius में 97 कम degree है, Fahrenheit. 97 Oh, yes, close to sir. Yes, 96. sir. तो अगर आपको पता है कि अपना बॉडी टेम्परेचर 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो हाउ मच विल बी इन सेल्सियस, ये पुट करके सेल्सियस में निकाल सकते हैं। कैन वी डू दैट? यस, वी कैन डू दैट बाय पुटिंग द वैल्यू एंड सॉल्विंग। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने? Yes, sir. ओके, नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन इस पे दो क्वेश्चन we'll do at least 2 questions based on this relation. Is there any problem today? Transmission की problem है क्या? Attendance is also down and problem आ रही है आप लोगों को? Network problem is there today. Net problem आ रही है? Okay, therefore, okay. But your I'll go slow, voice no is clear, problem. sir. Now it is clear, okay. Note कर लीजिए, फिर we'll solve 2-3 questions. Noted. So can we see one or two questions based on this relation first? देखो, if body temperature is, if human body temperature is 37 degree Celsius, find temperature in Fahrenheit scale, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले फार्मूला,
f minus 32/9, ठीक है। तो c 37 पुट कर दीजिए, डिवाइड बाई 5, f minus 32/9. If you क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देखेंगे ना, f will be coming 98.6 और क्लोज टू 97 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ भी हमने 37 है ना, एक्चुअली 37 की जगह इट इज 36.9 होता है एक्चुअल टेम्परेचर, तो थोड़ा सा ज्यादा लिया तो इधर भी, और ये एक्चुअल टेम्परेचर इतना होता है, थोड़ा सा मोर आएगा, इट विल बी क्लोज टू 97। एक्चुअल में 96.8 है, बट इट विल बी लाइक दिस। So you can cross multiply and solve it. हो जाएगा? Yes, sir. Okay. So this is the formula you have to convert from one to other. एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। All right. Sir, 1 minute. Yeah. Done, sir. Okay. तो या और क्वेश्चन करेंगे, देखो जैसे ये है, दिस वन, ड्रा द सी एंड एफ ग्राफ टेकिंग सी ऑन द वाई एक्सिस। सी एंड एफ ग्राफ ड्रॉ करना है और सी को वाई एक्सिस पे लेना है ऐसे, और यहाँ पर एफ लेना है। तो देखो ये ऐसी इक्वेशन हमने पढ़ी है, इट इज सिमिलर टू द y इज इक्वल टू mx। इसको हमने ब्रेक, देखो क्या किया है, व्हाट वी डन, 5 को इधर शिफ्ट कर दिया, देखो इसको ब्रेक कर लिया ना, ये जो रिलेशन था ना, 5 को इधर शिफ्ट करेंगे, 5f/9 माइनस 32 इंटू 5, ये इतना आ जाएगा देखो, और नीचे 9 को ब्रेक करके लिख लेंगे 160/9। तो इट इज सिमिलर टू द y इज इक्वल टू mx माइनस c। इसका ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट। नेगेटिव इंटरसेप्ट का मतलब नीचे की तरफ जाके इंटरसेक्ट करेगा, वाई एक्सिस को माइनस में इंटरसेक्ट करेगा, लाइक दिस ग्राफ विल कम। लेट मी एक्सप्लेन इट, आई ऑलरेडी ड्रॉन इट, कैन यू सी, ऐसा ग्राफ आएगा, Yes, sir. ठीक है। इसको हम स्लोप, इसका एंगल भी बता सकते हैं कितना होगा एंगल ये, बिकॉज ये स्लोप, ये जो है ना 5/9, इट विल बी स्लोप मीन्स tan थीटा। यहाँ पे देखो, देयरफॉर स्लोप, अगर मैं स्लोप की बात करूं, स्लोप tan थीटा विच इज नथिंग बट m ओनली, m इज नॉट द मास हियर, m इज द स्लोप, जिसका मतलब होता है tan थीटा। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, चलो अगर आपको और इजी बनाए, और स्लोप इनटू x माइनस इंटरसेप्ट, ये मतलब होता है y इज इक्वल टू mx माइनस c, का मतलब ये होता है। तो स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा इज 5/9, थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ 5/9। इसके लिए टेबल देखनी पड़ेगी, 5/9 डेसिमल में होगा, लेस देन 45 होगा ना, क्योंकि साइन 45 1 होता है, तो ये लेस देन 1 है, सॉरी tan 45 1 होता है, लेस देन 1 है, तो लेस देन 45। तो एंगल कैन बी कैलकुलेटेड इफ log टेबल इज गिवन, बट ग्राफ जो है, those who are going for competitive examination may require this graph. Otherwise also you should know, these basic graphs should be known to you. All right? Yes, sir. Yes. और एक क्वेश्चन आता है, आपने शायद पहले भी 10th में भी किया होगा, कि ये वाला क्वेश्चन देखिए। ओके, यू कैन सी बोथ टुगेदर। इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करता हूँ।
ठीक है, देखो at what temperature centigrade and Fahrenheit scales coincide, that is they are equal, है ना। अगर हमने कोई इसका कोई टेम्परेचर लिया है और इस फार्मूले में पुट कर दिया तो एफ की वैल्यू भी सेम आ गई, है ना। तो ये मतलब हुआ। तो डू यू नो द आंसर ऑफ दिस? आप लोगों को सो मेनी ऑफ मे बी नोइंग आंसर। तो फार्मूला लिखेंगे, क्या फार्मूला है? C/9 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाई C/5 है ना फार्मूले Yes, में। sir. हाँ, लेट x बी द टेम्परेचर, यहाँ पे दोनों इक्वल होते हैं ना बहुत तरीके। तो यहाँ पे पुट कर दो x/5 माइनस x माइनस 32/9। इसको सॉल्व करके बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना आ रहा है x की वैल्यू? 9x माइनस 5x इक्वल टू 5x माइनस 160 है। Yes, sir. कितना होगा, कितना आएगा ये? 160 इज इक्वल टू 5x माइनस 9x 4x, है ना। 160 इज इक्वल टू माइनस 4x, x इज इक्वल टू माइनस 40 Yes, sir. डिग्री। तो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस स्केल माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल के इक्वल होता है। अगर आपको बोला जाए व्हाट विल बी द if the temperature of body is minus 40 degrees Celsius, what will be the temperature of body in Fahrenheit scale? तो वो भी माइनस 40 आ जाएगा। अगर आप इसमें पुट करके सॉल्व कर रहे हैं तो वो भी सेम आ जाएगा। मतलब माइनस 40 पे दोनों कोइंसाइड करेंगे, दोनों के माइनस 40 आमने सामने हो गए। इफ यू पुट टेक द थर्मामीटर एंड कैलिब्रेट इट, कैलिब्रेट मीन्स उसकी मार्किंग कर दो अप टू द माइनस 40 डिग्री तक, तो दोनों माइनस 40 आमने सामने होंगे। तो ये टेम्परेचर पे दोनों इक्वल होते हैं। गॉट इट? Yes, sir. कैन आई आस्क यू वन मोर क्वेश्चन? ये नोट कर लो, फिर हमको आई विल आस्क यू वन मोर क्वेश्चन विदाउट सॉल्विंग यू हैव टू रिप्लाई। देखो, if I ask you if temperature of body is 32 degree Fahrenheit, what will be its temperature in Kelvin? In degree Celsius, sorry, डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? Without solving you have to reply। 0. बोलो कितना होगा? 32 क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है, डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री आ जाएगा। Yes, sir. यस सर नो? अगर Yes, मैं पूछूं बॉडी का टेम्परेचर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? 100 डिग्री, बिकॉज बोथ आर द बॉइलिंग पॉइंट। यस सर नो? Yes, sir. Yes, sir. देखो, कैन यू सी हियर इन द टेम्परेचर स्केल, यहाँ पे देखिए, ये मैंने क्या पूछा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर। 32 कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर, है ना। ये 0 के साथ क्या कोइंसाइड कर रहा है? 32। अभी जो हमने सॉल्व किया वो माइनस 40 डिग्री सेल्सियस के सामने माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, वो आमने सामने होंगे माइनस 40 वाले। अदरवाइज नंबर विल बी डिफरेंट। 32 के सामने 0 मिलेगा, 212 के सामने 100 मिलेगा,
बट -40 के सामने -40 मिलेगा. दैट्स व्हाट द न्यूमेरिकल वी सॉल्व इट. अभी हमने जो सॉल्व किया. दैट्स व्हाट द मीनिंग. दैट इज व्हाट वाज द मीनिंग, है ना. तो ये आपको, ये जो आपका रिलेशन है, इससे आप निकाल सकते हैं कोई भी. सी में दिया है, सेल्सियस में दिया है, तो फ़ारेनहाइट में. तो एक यूजफुल रिलेशन ये मिल गया हमें. ठीक है, क्लियर? ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर? तो ये क्वेश्चन Yes, sir. देखो. So these two Yes, questions we sir. did it on the basis of this relation of C and F. ठीक है. अभी दो अदर रिलेशन वी कैन सी, केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस के बीच में. तो वी कैन पिक अप दिस. देखो जो हमने जनरल रिलेशन लिखा था ना, नाउ वी कैन पिक अप दिस वन एंड दिस वन. इसको इक्वेट कर सकते हैं. C/100 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन, यहाँ पे 100 आ जाएगा ना, डिफरेंस ऑफ बोथ. 0.15 हम छोड़ देते हैं. 0.15 हमने, तो relation between K and degree Celsius will be this. Can you see? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे. देखो 100 will get cancel, तो ये मिल जाएगा C इज इक्वल टू, ऊपर ये मिल गया. अभी हमने क्या किया, हमने इसको 273 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो K विल बी इक्वल टू C प्लस 273. अभी हमने फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, इफ रूम टेम्परेचर इस क्वेश्चन जैसे ये है, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में कई बार ऐसे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन करेंगे. इफ रूम टेम्परेचर is 27 degrees Celsius, find temperature in Kelvin. इसमें वैल्यू पुट कर देंगे. दैट्स ऑल. जो आपको आता भी है पहले से. सिंस K इज इक्वल टू C प्लस 273, तो C कितने, 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा Sir, 300 300 Kelvin. केल्विन में 300 आ जाएगा. 300 डिग्री केल्विन नहीं लिखते, केल्विन इज रिटन विदाउट डिग्री. तो मतलब जितना टेम्परेचर होता है उसमें 273 में ऐड कर देना, तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है ना. सिंपल. 273 के साथ ऐड कर देने का वो टेम्परेचर. जैसे बॉडी टेम्परेचर 37 है, केल्विन में कितना होगा, 273 ऐड कर दो, 310 हो जाएगा केल्विन में. केल्विन में जनरली हम मेंशन नहीं करते अपना ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, बट इफ समबडी आस्क यू इन केल्विन, तो आप उसमें 273 ऐड कर दीजिए. इट विल बी इक्वल टू 310. गेटिंग और नॉट? Yes, sir. Yes. तो ये कन्वर्जन हम बहुत बार अभी यूज करेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेचर विल बी गिवन इन डिग्री सेल्सियस, बट केल्विन इज द SI यूनिट. So before solving the numericals, we have to convert it into Kelvin, and then we can further solve. ठीक है. तो this you have to remember. Kelvin से easy है, you may be knowing also. ना आपको पहले से आता है ये तो. All right. Yes, sir. Okay. So now we see further. अभी we are moving on to the thermal expansion topic. Thermal expansion के जो uses हैं, thermal expansion में suppose if you heat the rod